Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter The End of Bipolarity and we will be discussing some of the questions from this chapter. We have discussed all the questions which are originally in this chapter, and now we will see some of the questions which are from that part which have been added to this chapter. Like we have seen that some new topics have been added through the syllabus. Some reference material is given in the syllabus itself, and some portions of chapter 3, that is hegemony of US, has also been added in this chapter. So today we will discuss questions from those portions, the newly added topics in the second chapter. Okay, तो इसमें हम लोग देखेंगे. So first of all, we will discuss some questions from Arab Spring. What do you understand by Arab Spring? As we have seen, in the 21st century, the process of democratization started in countries of West Asia, and this event is characterized as Arab Spring. Okay. So we will write down with the beginning of th21st century, the process of democratization started in the countries of West Asia, this event is known as Arab Spring. This answer is suitable for 1 mark question. If the same question comes in 2 marks, then you will have to also specify it started with which country, like Tunisia. It began in 2009 with Tunisia, and then it spread to other countries of West Asia like Yemen, Bahrain, Egypt, Libya, Syria, and you can also give like people were dissatisfied against the corruption, unemployment and poverty, and that become one of the most important reason for this Arab Spring. So you must prepare for these 2 marks question also, है ना. सेम क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपको उसके लिए तैयारी करके रखनी होगी. एंड नाउ वी विल सी अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली.
explain the factors which were responsible for Arab Spring. तो इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले तो अरब स्प्रिंग आपको डिफाइन करना होगा, है ना. अरब स्प्रिंग क्या है, जो कि भी जस्ट नाउ वी हैव डन, एंड देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन द रीजंस. देयर आर टू रीजंस, टू फैक्टर्स वी कैन से. फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर में आपको यही देना है कि जो सिस्टम था, गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, उससे लोगों में डिससेटिस्फैक्शन था. पीपल वर ऑफ द ओपिनियन दैट whatever problems they are facing, like the problem of unemployment, problem of poverty, and corruption, which was very much present in the system, they considered that all these problems are there only because of the government, because the government is authoritarian, the government is unaccountable, and this is the reason for their misery. Whatever hardship they are facing in their life, all these are because of the government, because of the authoritarian government, because of the unaccountable government. So ये जो situation था उसने लोगों में dissatisfaction लाया अपने government के against. So these are the internal factors, the factors, the reasons which were present in the system itself. And the second factor you can say is external factor. एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग देखेंगे कि जैसे जो हमने डिस्कस किया था, सोशल मीडिया. जो सोशल मीडिया है, जो जिसको हम कहेंगे कि आईटी सेक्टर में जो रेवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से जो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा जो यूज़ होने लगा, इससे क्या हुआ, लोगों ने इसने सोशल मीडिया ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर experiences, and people started to communicate with each other, to communicate with like-minded people. तो इस तरह से ये जो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के जो सोशल मीडिया के वेरियस टाइप्स हैं, इनकी वजह से लोगों को एकजुट होने का मौका मिला. एंड दैट बिकेम रीजन फॉर द अपराइजिंग ऑफ द पीपल. कैसे लोगों के अपराइजिंग को ऑर्गेनाइज किया गया? एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू दीज थ्रू यूजिंग दिस सोशल मीडिया ओनली. So that become the external factor. These are the two factors responsible for Arab Spring. And now we will see some questions from CIS, Commonwealth of Independent States. The first and the most important question is the full form of CIS. What is CIS, or what do you mean by CIS? Okay. So CIS is Commonwealth of Independent States.
which came into existence after the which came into existence with the disintegration of USSR. Disintegration of USSR. Okay, and now there can be another question. Second question is, for what purpose CIS was formed? CIS was formed for the purpose of economic cooperation, so that the independent countries of erstwhile USSR can achieve economic growth by the economic cooperation of each other. Okay, so that is the purpose of CIS. CIS के बनने के पीछे main reason यही था. So CIS was formed to achieve economic cooperation. CIS was formed to achieve economic cooperation and economic growth of the independent countries of erstwhile USSR. Okay, and now we move to another question. This hegemony of US, from this chapter there can be many questions. जो छोटे छोटे 1 mark के question, objective type question है, बहुत सारे questions हो सकते हैं. Like one of the most important question can be कि who was the president of US at the time of first Gulf War? As we have seen, George H.W. Bush. George H.W. Bush was the president of US at the time of first Gulf War. When this Gulf War, what was the situation of the Gulf War? इस पर बहुत सारे questions हो सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे. Evaluate the circumstances in which first Gulf War started.
So in this question you will have to explain how this war started. First of all, in August 1990, Iraq invaded Kuwait, and then there was diplomatic effort from UN to convince Iraq to quit its aggression, but Iraq was not ready to accept this suggestion of UN. And then what happened, that UN mandated the liberation of Kuwait by force, and in this way this first Gulf War started, in which America led the attack against Iraq, है ना। तो इसमें आपका ये सारा आएगा, अगस्त 1990 अटैक बाय Iraq on Kuwait, and then diplomatic efforts by UN ताकि इराक छोड़ दे, क्विट कर दे एग्रेशन को, but Iraq was not ready, and finally UN mandated the liberation of Kuwait. Finally UN mandated the liberation of कुवैत बाई फोर्स। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके आंसर में आने चाहिए, इसको आपको एलैबोरेट करना होगा, ठीक है। इसको एलैबोरेट करते हुए आपका आंसर होगा। एंड देन देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस गल्फ वॉर ओनली। The question is, the first Gulf War revealed the vast technological gap that had opened up between the US military capability and that of the other states. Explain the statement. Okay, इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। द फर्स्ट गल्फ वॉर रिवील्ड द वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप between the US military capability and that of other states. Explain the statement. कैसे हमें ये समझ आता है कि हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं कि यस दिस वॉर हैज एक्चुअली रिवील्ड, इसने बताया कि देयर इज वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप, ठीक है।
यूएस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है और अदर स्टेट्स की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल गैप जो है वो है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है? ये हम लोग इसको कई सारी चीज़ें इसमें देखा हमने इस वॉर में यूज हुए, जैसे स्मार्ट बॉम्ब्स जो कि यूएस की तरफ से यूज किया गया ड्यूरिंग दिस वॉर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम कह सकते हैं, इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि दोनों यूएस और अदर कंट्रीज के मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बीच में टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज्यादा था। तो स्मार्ट बॉम्ब्स यूज हुआ और इसी के कारण इसको कंप्यूटर वॉर भी कहा गया। स्मार्ट बॉम्ब्स एंड इट वाज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर। कंप्यूटर से खेला जाने वाला ऐसा वॉर, पहली बार दुनिया इस तरह के वॉर को देख रही थी। इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। क्यों? क्योंकि लाइव टेलीकास्ट देख रही थी दुनिया अपने लिविंग रूम में सोफे पर बैठ के, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, अपने जो भी एनिमी है उसको मारते हैं सोफे पर बैठे बैठे, उसी तरह से जो अमेरिका में लोग थे या पूरी दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसमें कि लोग देख रहे थे कि किस तरह से इराकी फोर्सेस जो है वो डिफीट हो रही हैं अमेरिकन फोर्सेस, और जो इधर यूएन की फोर्स थी 34 कंट्रीज की, कैसे वो इराक को हरा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो पहली बार दुनिया इस चीज को विटनेस कर रही थी, और ये ही कारण है कि पता चलता है कि कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल गैप जो है वो आ चुका था यूएस के पावर में और अदर स्टेट्स के पावर में। ठीक है, दिस इज योर आंसर। एंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन इनफिनाइट रीच, है ना? ऑपरेशन इनफिनाइट रीच से आप क्या मीन करते हैं? इसमें हमने देखा था कि ये इट वाज in the year 1998 when at two countries, Kenya and तंजानिया, केन्या और तंजानिया में जो यूएस की एम्बेसी थी उस पे बॉम्बिंग हुई थी, और उसका ही बदला इस ऑपरेशन के थ्रू लिया गया था कि जिसने भी बॉम्बिंग किया है अलकायदा इसके पीछे मास्टरमाइंड था। तो उसका पता लगाने के लिए ऑपरेशन इनफिनाइट रीच हुआ था, जिसमें कि बिल क्लिंटन के लीडरशिप में ये हुआ था। उस समय बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट, एंड वी सी दैट द टारगेट्स ऑफ अल कायदा was bombarded by US, and these targets were in countries like Sudan and Afghanistan. तो इस तरह का जो पावर का अपना स्ट्रेंथ दिखाना, अपने पावर को शो करना, इट वॉज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द यूएस। कि यूएस के एम्बेसी पर जब अटैक होता है तो यूएस किसी भी कंट्री में वो अटैक करने वाले छुपे हों, उनको उन पर वो बॉम्बार्डिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है, जबकि ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट था। What is Operation Infinite Reach? तो ऑपरेशन इनफिनाइट रीच बताने के लिए आपको पहले ये बताना होगा कि तंजानिया एंड नैरोबी, तंजानिया केन्या में, केन्या का जो कैपिटल था दैट इज नैरोबी, एंड तंजानिया का जो कैपिटल था वो दार एस सलाम। तो तंजानिया और केन्या में यूएस एम्बेसी पर बॉम्बिंग होती है, बॉम्बिंग ऑन यूएस एम्बेसी।
और इसके बाद क्या होता है कि क्लिंटन जो है इस ऑपरेशन इनफिनाइट रीच के लिए ऑर्डर करते हैं। क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एट दैट टाइम, ठीक है, ऑपरेशन इनफिनाइट रीच। और इसमें ये होता है कि अल कायदा जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसका ही इसमें हाथ माना जाता है और इस ऑपरेशन के थ्रू अल कायदा के जो ठिकाने हैं उस पर क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक की जाती है। क्रूज मिसाइल attacks cruise missile attacks on Al-Qaeda terrorist targets Yes, Al-Qaeda terrorist targets in Sudan and Afghanistan. This is Operation Infinite Reach. Okay, and now we come to next question, like what do you mean by 9/11? What is 9/11? सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 9/11 जैसा कि हम लोग इसको डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरह से जो 11 सितंबर 2001 को जो 19 हाईजैकर्स थे जो कि अरब कंट्रीज़ को बिलोंग करते थे, उन्होंने 4 अमेरिकी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और चारों को अलग अलग डेस्टिनेशन पे ले गए। लाइक जो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ और साउथ टावर से टकराए 2 एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट जो था वो वर्जीनिया आर्लिंगटन में जो पेंटागन बिल्डिंग है जहाँ पर कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, वहां पर क्रैश होता है। और एक जो 4th जो एयरक्राफ्ट था उसको जाना तो था यूएस कांग्रेस के कैपिटल बिल्डिंग को क्रैश करना था, बट वो कर नहीं पाया, वो पेंसिल्वानिया में एक फील्ड में गिर गया। और इस अटैक, यही अटैक जो है इसी को हम 9/11 के नाम से जानते हैं। और इसमें करीब करीब 3000 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। एंड दिस अटैक वाज कंपेयर्ड टू द ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन डीसी इन 1814 एंड जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1941। उतने बड़े बड़े जो अटैक्स थे उसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया। और जो लॉस ऑफ लाइफ था वो यूएस के सॉइल पे इतना ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ आज तक नहीं हुआ था 1776 के बाद से, जबकि अमेरिका को आज़ादी मिली थी, जबकि अमेरिका ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और 1776 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था। उस समय ही अमेरिका की सॉइल पे इतने सारी जान गई थी। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम था जबकि 3000 लोग अमेरिका की ही धरती पे मारे जाते हैं। तो ये सारा कुछ आपके 9/11 में आएगा। Hijack of this 4 American commercial aircraft. By 17 hijackers.
फिर आपको सबका डेस्टिनेशन बताना होगा, जैसे एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकराया, 2, है ना। फिर एक जो है वो वर्जीनिया में आर्लिंगटन में पेंटागन बिल्डिंग से में क्रैश हुआ, पेंटागन बिल्डिंग। फिर एक जो है वो फेल्ड हो गया, जिसको क्रैश होना था कैपिटल बिल्डिंग से, जिसको क्रैश होना था कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। ठीक है, और फिर इसमें आपको बताना यही 9/11 है। दिस इंसिडेंट इज नोन एज 9/11, है ना। यहाँ पे ही आपको बता देना है 11 सितंबर 2001 को ये हुआ था। ठीक है, फिर कैजुअलिटी कितनी हुई थी, 3000। और इस इंसिडेंट की किसके साथ कंपैरिजन किया जाता है? कंपैरिजन 1941 में पर्ल हार्बर पर जो अटैक हुआ जापान ने जो किया उसके साथ किया जाता है, और इसकी कंपैरिजन की जाती है जो ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन डीसी 1814 में हुआ उसके साथ। और अमेरिका के सॉइल पे 1776 के बाद पहली बार इतनी कैजुअलिटी थी। ये आपका पूरा आंसर होगा। ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।